Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, as all of you are aware, these corporate face-to-face series help us understand emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies, which helps us understand these companies in a much better way. In short, we get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and how the promoters aspire to become big over the next, say, 2 to 3 years. So, this is a great opportunity to understand every company. And today, friends, we've got a very interesting company which operates in a very niche space. And today, the company we're going to talk about is a company called Exato Technologies Limited. And I have the privilege of having Mr. Apurva K. Sinha, who's the promoter, chairman, and managing director of the company. Apurva ji, very much thank you for this podcast given to us. And I'm quite sure, sir, in this small interview, I'll be able to understand your company better and it will help all our investors who are hearing this podcast. So Avinash, thank you so much for having me on this podcast. So I've been fan of yours. I've been gone through to so many podcasts of yours and find this they really informative, and there is a lot to learn. So I'm also looking forward to this discussion, Avinash. Okay. So, Apurva ji, first basic elementary question is if you could explain to all of us, sir, what is the broad business model of our company? What exactly do we do? What kind of value do we add to the customers? And, sir, how did this business journey start? I believe, when did it strike to you to start this entrepreneurial journey? Was it a first generation effort or was it started by your father and then you took over? Sir, if you could tell us something initially on the business journey and then explain on the business model. Right. So, Avinash let me give me introduction about myself. So, I'm a computer science engineer with MBA in marketing, and then I worked with large services companies like Wipro and TCS for a longer period of time, for 6, 7 years, both these companies, wherein I saw that how a large complex organization works and how a service-led organization works. So then, when I had a good learning experience of working with these large system integrators, so I said that okay, I had enough experience on services side. Let's move to a company which is on product side. So I joined a analytics company which was based out of Israel, and then I was heading their alliances division for 5 years. So again, a long stint with that company. सो मेरी ये आदत रही है कि जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है. सो पहले जो सर्विसेज कंपनी में जो भी सीखा था वो प्रोडक्ट कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट किया. फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी में जो सीखा, तो आइडिया ये था कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ mid-sized company, because there were very big companies like Infosys, TCS, Accenture, and then there were very small companies. So एक mid-sized analytics company बनाने की possibility थी, and that is how the evolution, this idea of Exato.ai started. So ये मैंने 2016 में start की है. It has been 9.5 years since this journey, and we are now 125 CR in revenue and 135 people. We are serving 12 plus locations globally. So we our 25%, 26% of revenue is coming out of India, and close to 75 is coming from India. But plan is how we can scale more and more internationally and expand our base in India also. So जी, आपको ये भी बताना था क्योंकि यू आस्क्ड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज आवर बिजनेस मॉडल. सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी हैव अ कंसल्टिंग लेड सॉल्यूशन ऑफरिंग, जिसमें हम अपनी कंसल्टिंग सेल्स से हम ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्ट को अपने एंड कस्टमर को ऑफर करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, उसको 24x7 सपोर्ट करते हैं. बेसिस कस्टमर रिक्वायरमेंट वी गिव देम द डिजायर्ड आउटपुट. So take for example, so you name a bank, there are customers. Close to 20 plus banks we are serving in India. You name a ITS company, there are customers. 30, 35 BPO, ITS, Wipro, TCS, IBM, we are serving all of them. And then travel companies like Make My Trip. मिस्टर झुंझुनवाला की एक कंपनी है इन्वेंचर हेल्थ केयर, लास्ट ईयर वो लिस्टेड हुई थी. दे आर ऑल्सो आर कस्टमर. इंडिगो एयरलाइंस, आईजीटी इंटरग्लोब लिस्टेड है, वो दे आर ऑल्सो आर कस्टमर्स.
सो इस तरह के क्लाइंटेल हम सर्व करते हैं ना। ये क्लाइंटेल को, द रीजन व्हाई वी आर एबल टू सर्व ऑल दिस कस्टमर्स सिंस लास्ट 8-9 years and scaling business with them is we work in a very niche segment which is customer experience analytics. ओके। सो जो भी उनके एंड कस्टमर है, जब उनको वो कॉल करते हैं कस्टमर सर्विस को, तो उनको कैसे प्रॉपरली सर्व किया जाए, उनको प्रॉपर आंसर दिया जाए और उनको रिटेन किया जाए और उनसे फर्दर कैसे रेवेन्यू या वैल्यू एड गेन किया जाए, ये हमारा बिजनेस मॉडल है जो हम अपने B2B कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। ओके, समझ गया। अपूर्व जी, आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, मैं पढ़ रहा था आपका प्रोस्पेक्टस की। आई थिंक यू हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल एक्साटो IQ प्लेटफॉर्म। सर, जी। इसके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली अविनाश जी, थॉट प्रोसेस ये था कि हमने ग्लोबल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके अच्छे कस्टमर बेस अक्वायर किए इंडिया में, जो कि अब 150+ कस्टमर्स हमने सर्व किए। सो व्हाट वी फाउंड इज कि एक गैप है, ये जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं ये सब कुछ नहीं देती हैं आपको। सो इनके पास इनके अराउंड एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो। तो हमने वो किया। जैसे एक बहुत बड़ा BPO है, जब वहां पे हमने वर्कफोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन इनका इंप्लीमेंट किया, तो उसका वर्कफोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन और जो BPO का एग्जिस्टिंग पेरोल सिस्टम था वो दोनों इंटीग्रेट नहीं कर रहा था। मैं आपको यूज केस बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि जब तक वर्कफोर्स मैनेजमेंट से ये डेटा नहीं आ रहा है कि किस इंप्लॉय ने ओवर टाइम किया, किस इंप्लॉय ने कब काम किया, तब तक आप उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव या पेरोल में कैसे सैलरी प्रॉपर दोगे। तो ये डेट इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा था। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा 2 साल लगेगा। हमने 3 महीने में ये IP बनाई और इनको दे दिया, और अभी वी चार्ज कस्टमर ऑल्सो, और हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अब इनके साथ चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये ओके। एक एग्जांपल है जो कि हमने देखा कि ये ग्लोबल कंपनीज के साथ ये भी पॉसिबिलिटी हम अपना IP बना सकते हैं। ओके। दूसरा, हमने एक म्यूचुअल फंड कस्टमर है। ये म्यूचुअल फंड कस्टमर का एक बहुत पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट था जो कि RBI का गाइडलाइन भी है कि किसी रीजन से अगर रिकॉर्डिंग, किसी कस्टमर ने कॉल किया कस्टमर सर्विस को और वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो वो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। ओके। बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं होना चाहिए जब रिकॉर्डिंग बंद है, क्योंकि सारा कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए होगा, और वो रिकॉर्डिंग 7 years के स्टोर तक होता है। तो कस्टमर ने बोला कि आप ये IP बनाओगे तभी मैं दे सकता हूँ आपको ऑर्डर। तो हमने वो 6 महीने में IP बनाई और डिप्लॉय कर दिया म्यूचुअल फंड कस्टमर के पास। तीसरा एग्जांपल है तो वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, जो कि उनका अपना, उनको हमने हाई एंड टेलीफोनी टरेट सोल्यूशन, ट्रेडिंग फ्लोर सोल्यूशन दिए थे। तो उनके पास यूजर ऑनबोर्डिंग करने का टूल नहीं था, तो हमने उनके लिए IP क्रिएट किया। तो हम ये जो एग्जैक्टो IQ है, इसके अंडर हम लोग ये सारे IPs बना रहे हैं जिसको आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं, और ओके। उसको फिर हम ग्लोबली मार्केट करेंगे। ये प्लान है अविनाश जी। ओके, समझ गया। तो बेसिकली IP बनाने के बाद यू कैन स्केल इट अप टू द नेक्स्ट लेवल बाय टारगेटिंग द ओवरसीज मार्केट, दैट इज एक्सपोर्ट मार्केट। एब्सोल्युटली। अपूर्वा जी, मेरे को एक बात बताइए। वी हैव मेट लॉट ऑफ SaaS कंपनीज, व्हिच हैव अ वेरी सर्विस ड्रिवन मॉडल। सर, हमारा मॉडल कैसे है? लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज अ म्यूचुअल फंड कस्टमर, और आपने बोला अगर कोई बैंक की कस्टमर है, तो सर हमारा बिलिंग कैसे होता है? लाइक इज इट ऑन अ रेगुलर सब्सक्रिप्शन बेसिस मेथड, और प्रोजेक्ट हो गया भाई, आपने IP डिलीवर किया, उसके बाद द मनी स्टार्ट्स, हाउ इज द रेवेन्यू बिल्ट इन? इज इट बेस्ड ऑन सिमिलर लाइक SaaS होता है कि भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, जितना यूज करो उतना पैसा दो? इज इट समथिंग सिमिलर और समथिंग डिफरेंट? सो मैं आपको 3 साल की हिस्ट्री बताता हूँ। बेसिकली पहले जो वन टाइम लाइसेंस सेल था ये ज्यादा होता था, और आज भी बैंक्स स्टिल वांट देयर डेटा टू बी स्टोर्ड इन देयर डेटा सेंटर, तो वो वन टाइम लाइसेंस खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। लेकिन जो IT ITS और BPO इंडस्ट्री है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रेफर करती है, बिकॉज उनका एंड कस्टमर कब उसके साथ अपना हाँ, बिजनेस कम कर दे, बंद कर दे, उसके बिल्कुल। लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत प्रेवलेंट हो रहा है। अब अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि डेटा विद इन कंट्री होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे प्रोडक्ट पार्टनर्स हैं, वो डेटा सेंटर अपना ला रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये बैंक्स और ये लोग भी ओपन हो जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ उनके पास लिमिटेशंस है। तो ओके। दोनों मॉडल है सर, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है और आपको वन टाइम भी है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सब्सक्रिप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज कस्टमर को उसमें कन्वीनियंस है, उसको वन टाइम कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, उसको अपना अपना सर्वर रैक डेटा सेंटर नहीं लगाना पड़ता है, रादर एंड उसको अपनी सिक्योरिटी फायरवॉल नहीं लगाना पड़ता है, बिकॉज ऑल दिस इज प्रेटी सिक्योर्ड। तो और उसका तो कस्टमर उसके लिए ओपन हो रहे हैं जहां पे वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा रहे हैं। इसीलिए आप अगर मेरा 3 साल का डेटा देखिएगा तो मेरा ARR इंक्रीज हो रहा है, और वन टाइम रेवेन्यू है जो प्रोपोर्शनेटली कम हुआ है। ओके।
नहीं नहीं, अपूर्वा जी, सो कैन आई अंडरस्टैंड, कैन आई एज्यूम, क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये जो आईपी आप कोई कस्टमर के लिए डेवलप करते हो वो आपकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, यानी आप इसको यूज करने को देते हो, लेकिन जो आईपी है वो आप ही के पास रहता है? इज दिस थिंकिंग राइट? Absolutely, your thinking is right. So again, IP also we give on both models, one time and subscription basis. So जब ओके। हम वन टाइम देते हैं तो वो कस्टमर की प्रॉपर्टी हो जाती है। जब हाँ। हम सब्सक्रिप्शन पे देते हैं तो फिर वो हमारी रहती है टिल द टेन्योर। ठीक। उसको वो पे करते हैं। बट मैं आपको एक चीज ब्रीफ करना चाहूंगा, अगर आप मेरा लाइन ऑफ बिजनेस देखेंगे तो तीन लाइन ऑफ बिजनेस है। बेसिकली CX एंड एनालिटिक्स है, हाँ। जहां पे हम ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट सोल्यूशन को अपने कंसल्टिंग लेड ऑफरिंग के साथ सेल करते हैं। दूसरा यूकैस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एज अ सर्विस एंड इंफ्रा है, जिसमें अगेन हार्डवेयर और टेलीफोनी सोल्यूशन हम देते हैं। तीसरा है जो IQ है, वो मेरा अपना IP डिवीजन हाँ। है। ओके, इस तरह से सर्विसेज। मेरा business- ओके। तीसरा कंपोनेंट मेरे ख्याल से सर्विसेज है। आई वाज जस्ट सीइंग योर बैलेंस शीट, हाँ, तो दैट इज सर्विसेज लेड। तो उसमें हाँ। उसमें उसमें हमें बेनिफिट भी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है, बट उसको बिल्कुल। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, अविनाश जी। बिल्कुल। अच्छा, अपूर्व जी, नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी एम्प्लॉयज, हमारे कितने एम्प्लॉयज? आपने बोला कुछ 120 इंजीनियर है सर, इसमें व्हाट इज द ब्रेकअप? आर दीज ऑल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स? सर, हाउ इज इट नहीं नहीं, ब्रोकन अप? तो टोटल 135 एम्प्लॉयज। आउट ऑफ दैट क्लोज टू 80-85 आर इंजीनियर्स। 80-85 में आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ 25-30 लोग होंगे, और 40-50 लोग हैं जो ग्लोबल सर्विसेज सपोर्ट में हैं, जो क्योंकि अच्छा। हम कस्टमर्स को 10-12 कंट्रीज में सपोर्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो ये बाकी जो रेस्ट 40-50 है वो उधर डिप्लॉयड है। ओके। और अपूर्व जी, अभी हमारा कितना एक्टिव कस्टमर काउंट होगा? 10-12 कंट्रीज में आप ऑपरेट करते हैं, हाउ मेनी एक्टिव कस्टमर्स मोटा मोटी वी कुड बी हैविंग लाइक? जी देखिए, हमारा रिटेंशन रेट 90 प्लस है, 97 प्लस है। तो मैं कहूंगा कि जो हमने 150 कस्टमर सर्व किए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 से ऊपर एक्टिव कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में। अब देखिए, हर कस्टमर हर साल बिजनेस नहीं देता है। सो हर 3 साल में कोई भी कस्टमर, ऑल्दो उनका रिन्यूअल AMC ये सब आते रहता है, बट टिपिकली 3 साल में वो एक बार दो बार बड़े बड़े डील्स देते हैं। तो इस तरह से है हमारा। तो 50-60 कस्टमर्स आप पर ईयर एक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। तो नहीं समझिए। अच्छा, मेरे को और एक बात बता पूछनी थी सर, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आई वाज जस्ट सीइंग योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपूर्वा जी। मैं देखा कि सर आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया है, लेकिन आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो गया है। तो मुझे पूछना है सर, ये हमारे धंधे में अपूर्वा जी, इज इट लाइक आपको इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लगते नहीं, क्योंकि फाइनली इट इज यू आर गिविंग कंसल्टेंसी, टिपिकल काइंड ऑफ कंसल्टेंसी टू द क्लाइंट? So just explain to us, sir, why the employee cost has come down. It has come down marginally in 25, but why was it down despite revenue going up? Normally employee cost तो fixed cost होते हैं, तो सर इसके बारे में बताइए। सो इसके दो तीन रीजन है, मैं आपको पूरा इलाबोरेट करता हूँ। इसका सबसे पहला रीजन है कि हमने टेक्नोलॉजी और टूल्स डिप्लॉय किया है, तो हम सेम प्रोजेक्ट हम कम एम्प्लॉय से सर्व कर पा रहे हैं। जो ओके। पहले हमको ज्यादा एम्प्लॉय, जैसे आप बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट वाले टूल आ गए हैं जिसमें हाँ। काफी कुछ रिमोटली हो जाता है। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा क्या है कि हमारा जो एक एडिशनल बेस है, वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो आप देखेंगे वो कैपिटलाइज भी दिख रहा है आपको। हाँ, तो बराबर। इसीलिए हाँ, तो हम जो IP डेवलपमेंट में वहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपको एम्प्लॉय कॉस्ट डाउन दिख रहा है। तो ये दो प्राइम रीजन है। हम टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस, हम ERP अपना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने काफी रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसमें हम रिमोटली बहुत सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स बेस्ड काम है। बिल्कुल। तो यहीं से कस्टमर का डेटा, सॉरी, सर्वर एक्सेस करके वो सब सब कुछ इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये दो प्राइम रीजन है, अविनाश जी। तो मोटा मोटी हम ये समझ ले अपूर्वा जी, की अगर ये फोकस रहेगा कि लॉट ऑफ टूल्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन स्केलिंग अप द बिजनेस, so can we assume that employee cost will not increase in a linear fashion, अपूर्वा जी? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। इनफैक्ट जो हम आगे जो एम्प्लॉय कॉस्ट में जो हम इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, वो हम इंटरनेशनल रीजन में सेल्स में करने वाले हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा मार्केट US और UK है। तो अभी अभी हम वी हैव कस्टमर बेस, हमारे कुछ 8-10 कस्टमर हैं जो दोनों जगह से हैं। बट हमारा आइडिया है कि वहां से और मेरा कुछ 25% रेवेन्यू अभी इंटरनेशनल से आता है। हाँ। मेरा आइडिया ये है कि मैं कैसे 50% 60% रेवेन्यू इंटरनेशनल से आए। सो उसके लिए हम मेजर हायरिंग करेंगे इन US,
एंड हम मेजर हायरिंग करेंगे इन यूके एंड यूरोप। तो ओ, जो इन्वेस्टमेंट है एक वहां जाएगा, बट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीमेंट नहीं होगा ऑन कॉस्ट, बिकॉज हम जो मेरी जो डिप्लॉयमेंट डेवलप डिलीवरी टीम है उसमें बहुत एडिशन नहीं होगा। डिलीवरी विल बी इंटायरली बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, बट द ओके, करंट डिलीवरी इज एबल टू मैनेज 40-50% ऑफ रेवेन्यू स्केल। ओके, अंडरस्टूड। Sir, in your presentation, I saw that we have got a very large pipeline of orders. Sir, करीबन 350 करोड़ के ऑर्डर है। तो मुझे बताइए सर, ये आर दीज कंफर्म्ड ऑर्डर्स, और पाइपलाइन में जब हम कहते हैं कि सर मोटा मोटी कस्टमर हैज एग्रीड, बट आर दीज ऑर्डर्स एक्चुअली विद अस, और इज इट अ काइंड ऑफ एन L1 ऑर्डर? एंड सर अगर है तो व्हाट इज द टाइमलाइन वी कैन एक्सपेक्ट दीज ऑर्डर्स टू गेट कंप्लीट? सर इसके बारे में बताइए। सो अविनाश जी, मेरा टोटल ऑर्डर बुक 515 करोड़ का है, जो कि नॉन कैंसिलेबल है। सो हाँ, हम जब भी कस्टमर से सब्सक्रिप्शन ऑर्डर साइन करते हैं तो इस कंडीशन पे करते हैं कि आप कैंसिल नहीं करोगे, बिकॉज हम उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप हमारे को क्वार्टरली पेमेंट करो रादर देन वन टाइम आप हाँ, लाइसेंस पे इन्वेस्ट करो। ओके, तो और बैक एंड पे भी जो टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ हम काम करते हैं उनके साथ भी नॉन कैंसिलेबल। तो ये सारे श्योर शॉर्ट ऑर्डर है। इसमें से मैं 515 CR इसलिए बताया कि मैं ये भी कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि कुछ 165 CR का सक्सेसफुली हमने रेवेन्यू बिल किया है ओके, अमंग ऑल दीज कस्टमर्स। तो हाँ, एक सक्सेस पैटर्न है, पिछले 1.5-2 साल से हम बिल कर रहे हैं। अभी 350 CR का और बिलिंग बाकी है, जो नेक्स्ट 3 to 4 years ऑलरेडी अलाइंड है। ओके, तो ये अभी के हिसाब से है, तो ये क्योंकि हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली बिल भी किया है, तो 350 करोड़ का नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ ये मोस्टली ये सारे कस्टमर रिन्यू होंगे। मैं हाँ, क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अंडरस्टैंड, हम कस्टमर के साथ उनके कस्टमर डेटा में उनके कंप्लायंस में काम करते हैं। तो हाँ, कोई भी बैंक या सर्विस प्रोवाइडर अपना वेंडर चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो सारे पैटर्न्स को जानते हैं। आपको बिल्कुल, जैसे आपको क्या पैरामीटर्स देखने हैं उस पे मुझे पता है। अब आप कोई नया वेंडर ले आओगे, वो आपका एक महीना इसी में लगा देगा, सर ये हाँ, सही है गलत है, वो मुझे पता है। इसी रीजन से अविनाश जी, आप अगर देखेंगे तो मेरा ऑर्डर पाइपलाइन कुछ 50-60 करोड़ 3 साल पहले से बढ़ के अब 500 करोड़ हो गया है। ओके, तो समझ। दीज दीज आर कंफर्म नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर्स। Okay, so basically, please correct me if I'm wrong. Basically, this means that this is a very sticky business. यानी एक बार कस्टमर आ गया तो फिर वो आपके साथ लंबा तरीके से ही remains with you for a fairly reasonable period of time, right? 90% रिटेंशन है सर इसमें। सो Okay, अगर आ गया तो फिर वो 90%, 95% वो रहेगा ही हमारे साथ। okay, और ये हमारे को स्ट्रेंथ दे रहा है, एंड इसमें सर वर्ड ऑफ माउथ काफी चलता है, इसलिए हम यहाँ बैठे बैठे ग्लोबल ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज वो जो हमारे प्रोडक्ट पार्टनर, OEM पार्टनर, उनके साथ और इनके दोनों के साथ काफी स्टिकनेस आ जाता है। Okay. Acha, now one thing I wanted to understand, there are two questions in one, question. Sir, we saw that 19% of your revenue comes from one UK based customer. Sir, इंग्लैंड से आपकी सेल आती है, और मेरे को बताइए सर, हर साल जब आप कस्टमर के साथ यू से इट गेट्स रिन्यूड, सो नॉर्मली रिन्यूअल्स हैपन एट अ स्लाइटली increased price, or is there a fixed contract for next 2 years we'll work on this price? How does the pricing work? And this UK client, is it a one off or will it continue? I mean, because 19% from one client is very large. I mean, नॉर्मल जो हम लोग ढूंढते हैं, तो सर ये आया तो है, लेकिन आगे भी कैन यू एक्सपेक्ट दैट दिस कस्टमर विल रिमेन विद अस गोइंग फॉरवर्ड आल्सो? सो अगेन अविनाश जी, इस कस्टमर का 2 साल का एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, और इस कस्टमर ने पिछले 6 महीने में हमें कुछ 5-6 CR के इंक्रीमेंटल ऑर्डर दिए हैं। तो ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कस्टमर हमारे साथ कंटिन्यू करेगा, और इस केस में और कंटिन्यू करेगा, बिकॉज ये तो टिपिकल इंश्योरेंस कस्टमर है। और यूके के जो कंप्लायंस गाइडलाइन है, GDPR, और वो उस पे ये हम इनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें कुछ 5-6 CR के मेजरली सर्विसेज ड्रिवन ऑर्डर मिले हैं पिछले ओके, 3-4 महीने में। तो ये हमारा डेफिनेटली बहुत पेट कस्टमर है, और हमारे को एक्सपेक्टेशन है कि इनके पास से रेवेन्यू और इंक्रीज होगा इन कमिंग मंथ्स, ओके, बिकॉज वो हम एक्सपैंड कर रहे हैं यूनिलैटरली वहां पे। सर आई थिंक नाइस टू हियर दैट। अपूर्वा जी, नाउ मेरे को बताइए कि दो चीजें, एक तो सर विच आर द काइंड ऑफ कंपेरेबल कंपनीज इन इंडिया विच डू सिमिलर वर्क लाइक अस, लाइक ऑब्वियसली देयर इज कंपटीशन इन एवरी सेक्टर। सर थोड़ा हमको बताइए, डू वी हैव एनी peers इन द इंडियन मार्केट विच एक्चुअली डू वर्क सिमिलर टू अस? एंड सेकेंडली सर, थी फाइनेंशियल्स तो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, but in terms of value add, you say that you get renewals from the same customers, people are happy with your service. Sir, what is the key value addition which you give to your customers, and which differentiates you from others? Sir, एक दो qualitative points अगर आप हमको शेयर करें।
जरूर। सबसे पहले हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं इंडिया में, हाँ। बिकॉज हम अपने पार्टनर्स के सबसे बड़े पार्टनर हैं ग्लोबली। देर आर टू थ्री कंपनीज, जैसे एक टीटेक डिजिटल है, देर आर कस्टमर्स। विप्रो इन्फोसिस भी नॉट अ डायरेक्ट कंपटीशन, बिकॉज दे पिक अप लार्ज मैनेज सर्विसेज डील। हाँ। उसमें छोटा कंपोनेंट कस्टमर एक्सपीरियंस का होता है, जो कि जनरली हमारे जैसे लोग को आउटसोर्स मिल जाता है। तो एज सच कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, व्हेन वी गो टू ग्लोबल स्केल देयर विल बी कंपटीशन। सो ओके। दैट्स पॉइंट नंबर वन। दूसरा हमारा यूएसपी ये सर है कि देखिए, हमने ना पिछले 9 साल में अपने 150 एंटरप्राइज कस्टमर के साथ काम करके हमने बहुत सारे यूज केस बिजनेस मॉडल, कैसे कस्टमर को किस तरह की रिपोर्टिंग चाहिए, क्या वो स्कोर कार्ड, क्या पैटर्न है, वो सब हमने खुद के डेवलप किए हुए हैं। सो हम द रीजन कि मेरा जो ऑर्डर बुक है वो 50 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ हो गया पिछले 3-4 साल में, इस कि हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे अपने कस्टमर से शेयर किए जब वो हम ऑर्डर क्लोज कर रहे थे। जब हम अपने प्रोडक्ट कंपनी, ये सारे ऑर्डर के पीछे एक ओईएम होता है, तो उनके साथ जब हम क्लोज करे थे, तो जब उनके साथ हमने ये क्लोज किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो कि डोमेन स्पेसिफिक है। जैसे हमारे पास बीएफएसआई का डोमेन स्पेसिफिक बहुत सारे पैरामीटर है, हेल्थ केयर का है। तो देखिएगा, हेल्थ केयर के मल्टीपल हमारे को कस्टमर्स मिलते जा रहे हैं, बीएफएसआई के मल्टीपल कस्टमर्स मिलते गए। शुरुआत में 3-4 थे, अब 20 से ऊपर हो गए हैं। उसी तरह बीपीओ के मल्टीपल 25-30 बीपीओ हम सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा मोट है, ये जो चीज है ना। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है, जिसमें हम ऑन द फ्लाई बहुत कुछ समझ लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो हम एक्चुअली क्या है अविनाश जी, कस्टमर एक्सपीरियंस इज आवर फोर्टे। हमारे पास 200 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सारी टॉप मैनेजमेंट टीम और एडवाइजर सब कुछ मिला के 200 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा सीटीओ है, उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जो सेल्स हेड है उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ आता हूँ। तो तो ये बहुत क्रेडिबिलिटी देता है। और ये 25 साल के एक्सपीरियंस बाद तो हमने पूरी इंडस्ट्री को चेंज और शिफ्ट होते देखा है। फ्रॉम बिल्कुल। वन टाइम लाइसेंस सेल्स, फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड सब्सक्रिप्शन, पूरी हम्म। जर्नी में हम रहे हैं। किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारे को पता है। कि बिल्कुल। यही रीजन है कि हम यहाँ बैठे बैठे हम ग्लोबली कस्टमर को सर्व कर पा रहे हैं, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको स्केल करना ग्लोबली। नहीं, आई थिंक वेरी नाइस। सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। अपूर्वा जी, देखिए मैं देख रहा था रेवेन्यू करीबन 124.23 करोड़ पिछले साल कुछ 114 करोड़ था। योर प्रॉफिट दिस ईयर अपूर्वा जी हैज जंप सिग्निफिकेंटली, मेरे ख्याल से करीबन 5.3 करोड़ से 9.76 करोड़ हुआ है। तो सर, एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई द बॉटम लाइन वाज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? क्योंकि रेवेन्यू तो बड़ा है, बट आई मीन मॉडेस्ट ग्रो है, but bottom line has grown significantly. So sir, any specific reason? Because there is some small other income, वो ठीक है, वो आपने उसमें इंक्लूड किया है, बट अगर वो भी हटा दे तो सर वो आपका प्रॉफिट तो काफी बड़ा है, इंप्रूवमेंट हो गया। तो was it because of better kind of pricing deals you got, more customers, or economies of scale? Sir, what were the key reasons for this improvement in profit? So major key reason was there is a shift in industry from one-time on-prem license to subscription Oh, license. और okay. सब्सक्रिप्शन लाइसेंस इज सर्विसेज हैवी। सो Okay. इसमें हमें काफी सर्विसेज का ये मिलता है, एंड दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो इनफैक्ट द प्रॉफिट हैज गॉन हैज बिकम बेटर इन H125, which is हाँ। a audited number which we are submitting in our RHP. सो Okay. ये फर्दर इम्प्रूव हुआ है आपको। सो सो प्राइम रीजन इज कि मोर एंड मोर कस्टमर्स आर गोइंग फॉर दिस सब्सक्रिप्शन मॉडल, एंड वन टाइम लाइसेंसेस कम हो रहे हैं। Okay. And second thing is, obviously, as you stated, we have achieved that economies of scale. So same team can cater large chunk of customers. Okay. We are getting long-term contracts, उसमें स्टिकीनेस भी है, प्लस ये ज्यादा सर्विसेज हैवी होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पैट में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नहीं, आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन, अंडरस्टूड। सर, मुझे और एक बात बताइए कि हम लोग जब कोई क्लाइंट के साथ साइन अप करते हैं तो मोटा मोटी सर, डू वी टेक टाइम फॉर फाइनलाइजिंग द डील? फॉर एग्जांपल, समबडी कम्स विद अ यूनिक रिक्वायरमेंट, तो जब तक वो कस्टमाइज होता है, आपकी टीम उसको मिलती है, फिर बाद में द डिलीवरी स्टार्ट। सो टिपिकली व्हाट्स द स्पीड टू मार्केट? लाइक सपोज आई कम टू यू एंड से आई हैव गॉट अ यूनिक रिक्वायरमेंट, you will understand my requirement, you will give a solution, and then you will deliver it. Sir, what's the time when that actual deal revenue starts for you? Like, is it right from day one, or when the deal actually gets implemented, your solution is given to the client? So it is typically 3 months, Avinash ji. Basically, what happens is when we sign a deal with a customer, so the cloud instance has to be ready.
उसके ऊपर लाइसेंसेस और ये सब्सक्रिप्शन ये सब लेना पड़ता है अपने बैकएंड ओईएम पार्टनर के साथ। उसके साथ साथ उनकी पूरी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उनके इन्वायरमेंट का ऑडिट करना होता है कि उनका इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ है। उनका पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ता है जो कि इनिशियल फेज में ही रखा होता है साइनिंग से पहले। उस रिक्वायरमेंट को फिर फर्दर जो भी हम साइनिंग के बाद जो भी हम ऑडिट और टेस्टिंग करते हैं उससे मैच करना होता है। तो इसमें 3-4 महीने जाते हैं, तो टिपिकली 3 to 4 month साइकिल है। Acha, Apurva ji, just a macro question. We operate in a niche space, and you said we have got a mastery on that segment. Tell me, globally, what could be the size of the opportunity? अभी तो वैसे भी 25% आपको domestic से आ रहा है, almost the other part comes from. But in terms of the scalability, today we are 125 crores. In the next say 2 to 3 years, without you giving me a number, I mean, what is the size of the opportunity? हम लोग total addressable market normally we like to ask the promoters, sir, कितना बड़ा pie size है और हम उसको कैसे capitalize करेंगे? So Avinash, you see, customer experience analytics is 15 billion globally, overall market size. I'm only talking about technology, and this is growing at a CAGR of 15 to 20%. Oh, So by 2030, it will be 30 billion. oh. Now, I want to give you a comparative study. So, typically, customer experience is used for customer acquisition, customer satisfaction, customer retention. So, retention. And there is one more spend which a typical customer wants to have for the same parameter, which is advertising. So Hmm. advertisement में 1.3 ट्रिलियन स्पेंड होता है ग्लोबली, जबकि कस्टमर एक्सपीरियंस पे एज ऑन डेट केवल 14 बिलियन, यानी एडवर्टीजमेंट पे 10 टाइम्स होता है. So if my customer is getting convinced that because of better customer experience, the retention is much higher and renewal chances are much higher, they will spend less on advertisement and more on customer experience. So that trend is happening. Okay. So, although an advertisement is going to be there, I'm not going to take credit out of it. But what I want to tell you is you also agree that acquisition of a new customer is 80% costly than retention of a customer. And Correct. that is where our play is. Okay. Now, a company like us with advent of AI is going to have a very strong play. Why? I will tell you the reason. So, since last 10 years and before that also from my experience, we have been servicing customer on their data side. There's a huge amount of data which is there, and that data has a pattern. Like if you are a customer of a bank and आपका वहां पे बैंक अकाउंट है, वहां पे आपका पैसे रह हैं, तो वो कस्टमर के पास वो बैंक के साथ आपकी प्रोफाइलिंग है. उसके बेसिस पे दे कैन आइडेंटिफाई कि आप कितने वैल्यूड कस्टमर हैं. उसके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी सर्विस दी जाएगी. बहुत सारी जगह अगर आप प्रायोरिटी कस्टमर तो आपको प्रायोरिटी सर्विस, बिकॉज किसी के पास समय नहीं, ना कोई वेट करना चाहता है. हाँ. तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही आपका कॉल रिजॉल्व हो जा रहा है, आपको सब, तो यू विल बी डिलाइटेड कस्टमर, आप उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंटिन्यू करेंगे. अभी एडवेंट ऑफ एआई क्या होगा कि ये जो डेटा है, आपका प्रोफाइल, आपका जो वॉइस प्रिंट है, जो इंटरैक्शन हिस्ट्री है, ये सब कुछ एनालाइज करके आपको कैसे और बेटर सर्विस दिया जा सके, आपको कैसे जब जरूरत हो तो सर्विस दिया जा सके. सपोज आप मुंबई में है, आप मुंबई से दिल्ली आए और किसी रीजन से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, रात में 12 बजे आप कॉल कर रहे हैं और वो कस्टमर सर्विस वाला उठा नहीं रहा है, तो आप हैप्पी नहीं होगा, बोलेंगे भाई मैं किसी और के पास जाऊंगा, हाँ, बिकॉज मैं इतना ही कस्टमर हूं. बट वही रिस्पॉन्स आपको रात में 12 बजे मिल रहा है, भले ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं हो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व सेकंड स्टेज में रख रहा हूँ, बट आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सर मैं आपके इसमें देख रही हूँ, मैं आपको तुरंत बताती हूँ, तो आप एक एटलीस्ट सेटिस्फाइड कस्टमर रहोगे. बिल्कुल. तो ये जो चीजें हैं ना, ये इवॉल्व हो रही हैं. अब अविनाश जी, जितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज आएंगी उतना ही हमारा प्ले बड़ा होते जाएगा, बिकॉज वी आर कंसल्टिंग लेड सोल्यूशन प्रोवाइडर. करेक्ट. हम अपनी IP तो बना रहे, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री, हम ग्लोबल कंपनीज पे राइड अलोंग करके अपना मार्केट बेस करेक्ट. एक्सपैंड कर रहे हैं. तो मेरा प्ले एज अ सर्विसेज कंसल्टिंग लेड ऑर्गेनाइजेशन. So we proudly say that we want to create an organization which is Accenture at the, sorry, McKinsey at the front and TCS at the back end. तो McKinsey at the front यानी कि कंसल्टिंग लेड अप्रोच, और TCS एट द बैक एंड, जो TCS ने स्ट्रेंथ बनाया है सर्विसेज साइड, उसको कैसे हम कैपिटलाइज करें, वो कैसे, तो वो हम वी हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट in the current space which we want to scale at a bigger scale. It understood. अच्छा सर, normally what is the kind of working capital cycle in our business, like मोटा मोटी कितना टाइम में मिलता है पैसा कस्टमर से? तो या तो सो टिपिकल वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको 75 to 90 days है. अच्छा. सो ओके. 75-90 days है ओके. हमारा इसमें. नहीं, समझ गया.
सर दूसरी एक बात मेरे को आपको पूछनी थी कि आई वाज जस्ट सीइंग इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अपूर्वा जी कि कुछ पैसा इक्विटी से फंड हुआ है, तो आपने क्या कोई प्री आईपीओ किया था? ये आई मीन इफ यू हाँ जी, कैन हाँ जी। जी, हमने हमने प्री आईपीओ राउंड किया है। एक हमने मार्च में किया था, आपको जिसमें कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया आल्सो इन्वेस्टेड। सो उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, हमने उनको वैल्यू ऐड दिखाया, ये सब किया, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो एक प्री आईपीओ राउंड हमने कुछ 5.5-6 CR का मार्च में किया था। और अभी एक राउंड किया है आपको, जस्ट कुछ हफ्ते पहले। सो जो कि डीआरएचपी में मेंशन था कि वी विल बी डूइंग अ प्री आईपीओ राउंड। अच्छा, ये वही प्राइस पे हुआ था? आई मीन जो आईपीओ प्राइस है, आई मीन द प्राइस वाज सिमिलर तो अपूर्वा हाँ, जी? तो अब अभी जो रिसेंट हुआ है 3-4 हफ्ते पहले, वो आईपीओ प्राइस पे ही हुआ है। अच्छा सर, अभी जब आईपीओ की बात हुई है तो जस्ट इन अ शॉर्ट वे टेल अस सर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग दिस मनी एंड व्हाट इज द क्वांटम वी आर लुकिंग एट रेजिंग फ्रॉम दिस पब्लिक इशू? So we are looking to raise somewhere around 40 CR in this public issue. So basically, the money is going to be utilized on 3-4 areas. One is we are going to use it for working capital. Second, we are going to fund some part, a very small part, for our IP development. तो क्योंकि हम जो ये 3-4 आईपी ग्लोबल स्टैंडर्ड के बना रहे हैं, तो उसको उसका एक पार्ट हम फंड करेंगे इससे। तीसरा, कुछ हाई इंटरेस्ट हाई लोन है जो कि हमने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लिया था, जो बिकॉज आप देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू एक्सपैंड हुआ, तो हाँ, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं। बिकॉज वी आर कैश पॉजिटिव करेक्ट। प्रॉफिटेबल कंपनी, तो अननेसेसरी उसको कंटिन्यू करके फायदा नहीं व्हेन वी आर गेटिंग हाँ, फंडिंग। और चौथा, कुछ फंडिंग हम हायरिंग के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हायरिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इंटरनेशनल हायरिंग करनी है, तो सेल्स का बेस बनाना है यूएस में, सेल्स का बेस बनाना है यूके में। तो तो यहाँ ये 4 सेगमेंट में अविनाश जी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। understood. Ajay, one thing I was observing, Apurva ji, just from a finance point of view, because we are analysts, so we like to see the numbers properly. Sir, आपका operating cash flow तो this year has been very strong. Last year it was negative, but this year it was about 12.78. I'm talking about March 25. Sir, इसमें I was seeing that your creditors जो आपके trade payable है ना, वो 4 करोड़ से 12 करोड़ हो गए। तो normally sir, you don't get such a big suppliers credit. So I just wanted to know what exactly happened, sir, that you got such a big credit from your supplier lineup and your cash flow improved significantly. Sir, any specific reason for that? सो मैं आपको ना 1 साल पहले वाली स्टोरी पे ले जाता हूँ। सो 1 साल पहले क्या हुआ था कि हमने वी डिड अ वेरी लार्ज डील विथ अ बैंक विच वाज 35 CR। तो उसके वजह से वो और जनरली ये बैंक इनका इनका आपको जो बजट लैप्स होता है वो मार्च में होता है। तो इसके वजह से आपको मेरा कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा होगा। हाँ, और मेरा जनरली कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहता है, उसके प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही रहता है। बट वो एक डील था जो कि वन टाइम डील था, तो हमारे हाँ, उसके वजह से हमारा नेगेटिव हुआ। ओके। दिस ईयर वी वापस वी वी इम्प्रूव्ड। एंड हमने क्योंकि हमने हाई मार्जिन हाई वैल्यू डील की, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए, तो हमारे सप्लायर्स ने भी हमको एक्सटेंडेड टर्म दिया। वी नेगोशिएटेड दैट, वो केस टू केस नेगोशिएट हो जाता है नहीं, अविनाश but जी। I think very good, nice for you because this is a very healthy business. Ki sir, operating cash flows will always remain healthy. Sir, last question now for today is that we have seen COVID and things you have seen how the industry has progressed. Sir, in our business, Apurva ji, tell me one thing. What is the most important risk which you monitor every time? Like every day when you come to office, what is the most important risk which you monitor and you have kept this under control up till now, sir? If you could please tell us on that. See, Avinash ji, there are two risks which I see. One risk is definitely technology is evolving day by day. So आपको हर 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 हफ्ते, अगर हफ्ते कम बोल रहा हूँ तो मैं 15 दिन में 20 दिन में तो कुछ नया ये होता ही है। हाँ, वी नीड टू कीप लर्निंग, we need to keep evolving, and that is what we do. So we have a very regular training sessions happening that we conducted by HR team and led by our CTO team. सो ये एक होता है। दूसरा हमारा जो रिस्क है वो मैन पावर का है, जहां पे ऑब्वियसली ये हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज का होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए वी कीप हायरिंग लॉट ऑफ फ्रेशर्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ग्रूम देम। okay. And but I just wanted to share with you also is we have a good retention policy, and there are so many long timers, people who have been associated with us since last 8-9 years.
So they, Okay. they are still with us because we are a very people-friendly organization, and the idea is they are also seeing the way we are scaling, and there Okay. is a value creation for them also in terms of ESOPs, etc. So Okay. we, in a way, we are managing this, but yes, obviously these are the two risks. Apurva, just one added question. When you talk about senior employees, can you tell us what is the education profile you see in these employees? Like जब आप recruit करते हो, तो कैसे type के लोग आपके लिए काम करते हैं? Because your job is very niche. So, what is the kind of quality of talent? What are the kind of normal qualifications that you see? What is the kind of, obviously potential you see in these employees? Because obviously talent and your workforce is a very big asset for you. So, see, for us, definitely engineering or MCA degree is important because that's a core thing. Understanding the technology, having knowledge of this thing is very, very important. Now, the strength which we have is the core management team who has been there for a longer time. They are and who has good market connects. They are with us for a long time. Now they are also engineer and MBAs and all that. So obviously, like you mentioned that the retention is very, very important. But looking at the kind of leadership team we have and the kind of retention incentive policies, etc., is in place, and the kind of growth we are showing, everyone wants to be a part of growing ship. So we are on path to that, and with this recent IPO planning, also everyone is quite excited. So I think we will be able to retain good talents and hire good talents also. Well, I think very nicely mentioned. And Apurvaji, please accept my best wishes to you, your entire management team, and best wishes for your public issue also, sir. Thank you very much, and we'll be in touch in future also. Thank you. Thank you so much, Avinashji, for having me here, and I'm Yeah, really looking forward to meet you someday. yeah, yeah. Thank you.